Okay, the class is being recorded from now. So till now we have found out the area of a triangle. Okay, we know how to find out area of a triangle by the application of the formula area of a triangle is equal to half into base into height. Okay, now in this particular triangle ABC, in this particular triangle ABC, if we take BC as the base, then this, the line which I have drawn AD, will be the height. Okay, that means area of the triangle, area. सर Yes, सर आपका yes. स्क्रीन नहीं आ रहा है, मेरा स्क्रीन आपका नहीं आ रहा है, स्क्रीन तुम, नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, दो दो नाम है मेरा, देखो चेक करो, सुमित देव बोल के दो आएगा, दो में से कोई एक है तुम्हारा, अच्छे से चेक करो, सबको मिला है मेरे हिसाब से। आदर्श, यू आर एबल टू सी ना? Yes, sir. Yes, शर्मिष्ठा, sir. यू आर एबल? यस यस, Yes, दो sir. दो है तुम लोग, दो दो है तुम लोग, चेक करो ध्यान से। मैं स्क्रीन शेयर करने के साथ ही साथ दो नाम आ जाता है, एक नाम में तुम्हारा वाइट स्क्रीन आएगा, उसको क्लिक करो। विवेक राय, यू हैव टू ओपन योर कैमरा, दिस इज नॉट द वे यू सिट, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा सारा क्लास। ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is equal to half into base into height, isn't it? That means half into base. Which is the base? This is the base, BC. Half into BC into which is the height? This is the height, AD. AD. Okay, half into base into height. This is the basic formula which we generally use to find out area of a triangle. Okay, this is the basic formula which we use to find out area of a triangle. Now there is another formula to find out area of a triangle. Okay, so before that, let us see what is written in the chapter. Okay, one of you will read. I am switching off my mic, one of you will read. Okay, who will be the one? Let me check. आस्था कुमारी, तुम्हारा चेहरा कम आ रहा है, कैमरा का पोजीशन थोड़ा ठीक करो। सर मैं कंप्यूटर में करती तो कैमरा का पोजीशन नहीं ठीक कर सकता। अच्छा ठीक है, होगा। देवोश्री, यू स्टार्ट रीडिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, पेज नंबर 197। देवोश्री। You आज have ऐसा studied फील, in earlier You have studied in earlier classes about figures to different shapes such as squares, rectangles, triangles, and quadrilaterals. You have also calculated perimeters and the areas of some of these figures like rectangle, square, etc. For instance, you can find the area and the perimeter of the floor of your classroom. Let us take a walk around the floor along its side once. The distance we walked is its perimeter. The size of the floor of the room is its area. So if your classroom is rectangular with length 10 meter and width 8 meter, its perimeter would be 2 into 10 meter plus 8 meter equal to 36 meter, and its area would be 10 meter into 8 meter. Unit of measurement for length or breadth is taken as meter or centimeter, etc. Unit of measurement for area of any plane figure is taken as square meter, m square or square centimeter, etc. Suppose that you are sitting in a triangular garden. How would you find its area? From chapter 9 and from your earlier classes, you know that area of triangle equal to half into base into height. We see that when the triangle is right angled, we can directly apply the formula by using two sides containing the right angle as base and height. For example, suppose that the sides of a right triangle ABC are 5 cm, 12 cm and 13 cm. We take the base as 12 cm and height as 5 cm. See figure 12.1. Then the area of triangle. Okay, stop. Deboshi, you need to improve your reading skill. Okay, your reading skill is too poor. You have to improve it. Okay, so I'm reading once again.
You have studied in your earlier classes about figures of different shapes such as squares, rectangle, triangle, and quadrilateral. Now, what is a square? You know. What is a rectangle? You know. What is a triangle? You know. Now, my question to you is that what is quadrilateral? Meghna Sonowal. What is a quadrilateral? What can you say about a quadrilateral? Meghna Sonowal. माइक ऑन करके मुझे बोलो. Yes. What is a quadrilateral according to you? Yes, Meghna, switch on your mic. Meghna, just sitting and smiling is not enough. हाँ ना नहीं आने से भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं आने से ना बोलो सर, मुझे नहीं आता इसका आंसर. इट्स ओके. मेघना, माइक ऑन करके हाँ ना बोलो. नहीं आता है. हाँ ओके. क्वाड्रिलेटरल. प्रलय. प्रलय, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? माइक ऑन करके बोलो. माइक ऑन कर. Which has four side and all side and closed figure. Okay, quadrilateral is a closed figure having four sides. So this can also be a quadrilateral. Okay, this is also a quadrilateral. Now the thing is that there are various types of quadrilateral. You have to name me one by one. Yes, for that I would like to ask Pralay, this one Pranay. Bolo. Pranay Datta. What are the various types of quadrilateral? First is Square. अब बाकी लोग सुनो, अगर कुछ रह जाए तो बोलना है. Triangle. Square. Sorry. Rectangle. Rectangle. Then kite. Then का नाम नहीं याद आ रहा. एक का नाम. ओके, उन्मेखा. माइक ऑफ करो तुम. उन्मेखा. यस, उन्मेखा. उन्मेखा, माइक ऑन करके बोलो तो, और बाकी क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बोलो. उन्मेखा आता है? उन्मेखा, नहीं आने से ना बोलना, समय वेस्ट. रोम्बस. देन ओके, मैं दूसरा किसी को पूछता हूँ. सुमेधा. और क्या नाम आता है तुम लोगों को? बोलो. AR कौन है, मुझे चेक करना. आदित्य हाजोरिका. तुम हाँ बोलो. आदित्य हाजोरिका, शुभदीप दास, भविष्य एंड ऋषु. तुम लोग का कैमरा ऑफ है. एक का नाम याद आया. एक का नाम याद आया मुझे. हाँ बोलो, क्या है? ट्रेपीजियम. ओके, ट्रेपीजियम भी होता है. देन सर कैन आई सी? यस, यू कैन से. हु इज दैट? पहले नाम बोलो अपना. सर पैरेललोग्राम. नहीं, कौन आंसर कौन बोल रहा है? सर हम बोल रहे हैं. ऋषु. ओके, पैरेललोग्राम और एक होगा. तो इन सब के बारे में उतना ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि वी हैव लर्नड अबाउट देम इन योर अर्लियर क्लासेस. तो उतना डिटेल्स में जाने का कोई जरूरत नहीं है. तो
ये सब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग को पता है, isn't it? You have also calculated perimeters and area of some figures like rectangles, squares, etc. तो अभी तक के लिए तुम लोग मुझे बोलो तो क्या क्या किस किस फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर निकालना तुम लोग अभी तक सीखा है? प्रणामी दास, किस टाइप का फिगर्स के बारे में सीखा है जिसका हम लोग एरिया या फिर और क्या है, हाँ, पेरीमीटर निकालना सीखा है? एक मैं हेल्प कर देता हूँ प्रणामी को। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग सीखा है ना, हाउ टू फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया किस किस फिगर्स के बारे में हम लोग सीखा है, शेप्स के बारे में सीखा है, थोड़ा ब्रीफली मुझे बताएगी प्रणामी। स्विच ऑन योर माइक। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया एंड पेरीमीटर निकालना हम लोग सीखा है। और कुछ क्लोज फिगर? सर ट्रेपीजियम, रोम्बस। ट्रेपीजियम के बारे में पेरीमीटर, हाँ मे बी पेरीमीटर सीखा है, एरिया आई डाउट। देन सर मुझे एरिया आता है वो ट्रेपीजियम का। अच्छा, तब तो हाँ, और अच्छा बात है। और पैरेललोग्राम का भी दोनों है, मतलब हाँ, मेरे और पास सर्कल चार्ट का है भी वो सब। सीखा है ना हम लोग। वी हैव लर्नड अबाउट सर सर्कल इवन। सर्कल यस सर। सर्कल सर हाँ, आगे सीखा है वाले हम क्लास लोग में सर। सारा चार्ट बना के रखा है। ओके, लास्ट ईयर। हाँ ओके, एक्सीलेंट। सो वी हैव लर्नड अबाउट देम, इजंट इट? तो मैं जस्ट एक सिंपल रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। तो इसका मैं मेजरमेंट दे देता हूँ कुछ। सोचो कि इसका है 6 सेंटीमीटर एंड इसका है 3 सेंटीमीटर। That means here L is equal to 6 centimeter and B is equal to 3 centimeter, isn't it? So what is the perimeter of a rectangle? লক্ষ্য হীরা বলো, perimeter rectangle কি হব কোৱা? perimeter of a rectangle লক্ষ্য হীৰা। Yes, শুনি আছা লক্ষ্য হীৰা? মই গম পাই আছো। यस सर। perimeter of a rectangular formula কি হব কোৱা? জানা নে নাজানা হেটো কৈ দিলেও হৈ যাব। If you have forgotten, that is also okay. लेंथ इनटू ब्रेथ। No. Anushri? पेरीमीटर बोलो, पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलो। 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. गुड। ओके, दैट मीन्स 2 into लेंथ के जगह पे अगर मैं लिख दूं 6 प्लस ब्रेथ के जगह पे अगर मैं लिख दूं 3, तो ये कितना होगा? 2 into 9 इज इक्वल टू 18 आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला होगा L into B as this one लक्ष्य हीरा है सेट ना। एरिया का फॉर्मूला तो मैं बोल दिया था लक्ष्य का। It will be L into B. Area of a rectangle is equal to L into B. That means 6 into 3 centimeter square. It will be equal to 6 3s are 18 centimeter square. Am I correct till this much? यस सर। Okay. यस सर। यस Now, सर। this is one way of finding out area of a rectangle. Okay, this is one way of finding out area of a rectangle and area of a triangle also we have discussed. Now अभी ध्यान से देखो, ये फिर से मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। चला गया का एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। फिगर मोटा मोटी समझने लायक बन गया है। कुछ
इतना एक्सीलेंट तो इसमें ड्रॉ करने लायक मैं हुआ नहीं हूँ अभी तक। चलो ये सोच लो कि ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स है। हाँ सोच लो ये वाला वर्टेक्स टू वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स से वर्टेक्स तक ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यही सोच लो तुम लोग। ओके नाउ ओके ओके तो देखो अभी ध्यान से इधर, इसका एरिया निकालने का दो तरीका हो सकता है, इसका एरिया निकालने का दो तरीका हो सकता है। यस कैन यू हियर? यस who's that? Sir, I can't see your screen. Lucy. स्क्रीन लूसी तुम चेक करो तो फिर से एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ फिर से एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो, मेरा नाम आ जाएगा, दो नाम होगा, तुम चेक करो ध्यान से, दो है। हाँ नाम दो होगा, दो में से कोई एक को पकड़ना है, जिसमें तुम्हारा स्क्रीन आ रहा है उसको पकड़ना है, ठीक है। ओके सो इस ट्राइंगल का, इस रेक्टेंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है कि एरिया निकाल दो बाय L into B, ये होगा, ठीक है। फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला L into B, isn't it? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसका एरिया निकाल दूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और दोनों को मैं ऐड कर दूं, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आइदर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूं L into B, आइदर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूं L into B। हाँ, if I use the formula L into B, then we will get the area of the rectangle, isn't it? Or I can find out area of this particular triangle and area of this particular triangle and add them both, isn't it? दो तरीका है। चलो मैं एक और फिगर बनाता हूँ। हाँ मैं एक और फिगर बनाता हूँ। ध्यान से देखो ये फिगर क्या है। कंप्यूटर में बन रहा है तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं भी बन सकता है, तो काम चलने लायक होने से होगा। पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से क्या होता है। चलो ये बोलो तो क्या फिगर है, इस फिगर का नाम क्या है बताओ तो। ट्रेपेजियम। हाँ ट्रेपेजियम है। हाँ सर। ट्रेपेजियम है नहीं है। ट्रेपेजियम जनरली फोर साइडेड क्लोज फिगर के अगर मैं ड्रॉ किया तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। इसका स्पेशल मैं कुछ भी मेंशन नहीं किया हूँ तो तुम लोग नहीं बता सकेगा कि ये क्या है। तुम लोग को डायरेक्ट बोलना होगा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके यू हैव टू से दैट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली। ओके नाउ इफ आई ask you to find out area of this particular figure, how you will find out? How you can find out? So by drawing a diagonal. कर सकता हूँ, हाँ by drawing a diagonal, ठीक है। और if possible अगर मैं किसी भी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल सका
तो दोनों को ऐड करने से फिर से क्या होगा, एरिया ऑफ द फिगर निकल जाएगा, है कि नहीं? एरिया ऑफ द फिगर निकल जाएगा। Yes. तो इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का टेक्निक ही हम लोग आज सीखेगा। ओके, अच्छा, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का टेक्निक पहले मैंने क्या बताया है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equal to half into base into height. We have known so far, ठीक है, we have known so far about half into base into height. Now the thing is that only by finding out half into base into height we get the area of a triangle? Definitely not. There is another technique of finding out area of a triangle where height and base is not required. We will find out by a different way. Okay, we will find out area of the triangle whose only sides are given. Okay, whose only sides, value of the sides are given. यहाँ पे क्या दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हाइट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, हाइट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि नहीं? यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साइड्स है, 3 साइड्स दिया गया है और 3 साइड्स को देके हम लोग क्या निकालेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। To find out area of a triangle where only sides are provided, we use the formula. Okay, so here is the formula. You can note it down. S minus A, S minus B, S minus C, पूरा रूट ओवर के अंदर रहेगा. This is area of a triangle by, and this formula is given by Heron, and this formula is known as Heron's formula. Okay, this formula is known as Heron's formula. ये चैप्टर तुम लोग का इस बार एग्जाम में भी आएगा. Okay, so Heron was born in Alexandria in Egypt. Okay, he was from Egypt. Okay, so what you may ask me the question now, that what is A and what is B and what is C? We know, isn't it? They are sides of the triangle. A, B, C are sides of the triangle. Now what is meant by S? ये क्वेश्चन आ सकता है कि S क्या है? S is equal to semi perimeter. Semi perimeter. S is equal to semi perimeter. Now what is perimeter? Lucy, what is perimeter? The sums of the sides. Yes, sum of all the sides of a figure is known as perimeter. तो यहाँ पे तुम बोलो शिल्पी यॉर्निंग, बोलो शिल्पी, शिल्पी सरकार, सुनने से पता चल जाएगा इधर सब कुछ. माइक ऑन करो शिल्पी. शिल्पी, हाँ बोलो, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? बोलो, मुंह से आवाज निकालो, तुम्हारा मुंह हिल नहीं रहा है. शिल्पी, नेटवर्क का इश्यू बाद में होगा, तुम्हारा ये फेस हिल ही नहीं रहा है. बोलो बोलो बोलो. नहीं पता है तो दूसरा किसी को पूछना होगा. आस्था कुमारी बोलो. आस्था कुमारी. Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, बोलो. Sir, A plus B plus C. Very good. It will be A plus B plus C. अच्छा, thank you. Now Sumedha will tell me the word semi का मतलब क्या है. What do you mean by semi? Half. Half. Very good. तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? तुम्हारे हिसाब से जो होगा तुम वही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रॉन्ग होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा. बोलो
सेमी पेरीमीटर का मतलब, अगर सेमी मतलब हाफ है तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? Half perimeter. Half of perimeter. Very good. देवश्री, you tell me now, the half of perimeter of the triangle कितना होगा? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर का आधा इज इक्वल टू कितना होगा? देवश्री, देवश्री माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ बोलो, इसका पेरीमीटर का आधा कितना होगा? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर का आधा कितना होगा? एकदम सिंपल है तो। ज्योतिरादित्य, बोलो, इसका पेरीमीटर का आधा कितना होगा? इसका मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। सर a प्लस b प्लस c इंटू हाफ कर सकता है या फिर बाय टू भी कर सकता है कि नहीं? बाय टू ज्यादा इजीली याद रहेगा मैक्सिमम को। दोनों करेक्ट है। ए प्लस बी प्लस सी ऑल टुगेदर इंटू हाफ करने से भी होगा या फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू करने से भी होगा। ओके, अंतरा पुक्कन अंडरस्टूड? अंतरा पुक्कन अंडरस्टूड? बोर मत होना, यहाँ पे सब दिखता है। हाँ वेरी गुड, सोना नहीं है किसी को भी, मैं सब पे निगरानी रख रहा हूँ। अच्छा, तो सेमी पेरीमीटर मैंने निकाल लिया है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। चलो तो एक क्वेश्चन देख के हम लोग ट्राई करने का कोशिश करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ही हम लोग लेगा। ओके, यू कैन ड्रॉ द फिगर। और ये एस बिकॉज ये वाला क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, तो तुम लोग को अगर बाई चांस कुछ मिस भी कर दो ना, तो ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तुम लोग जाके चेक कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट, ठीक है। और इसका नोट्स भी वगैरह जो भी मैं लिखा हुआ रखेगा ना, उसका भी मैं पीडीएफ बना के रख सकता हूँ। 20 मिनट में ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस अगर तुम लोगों से कुछ मिस हो गया तो साथ ही साथ तुम लोग को मिल जाएगा। ओके, नाउ let me draw a figure. I have drawn a figure, triangle, okay, whose three sides, let me take it to be as okay, 40 centimeter, 40 centimeter, then another side be 24 centimeter and 32 centimeter. ये मैंने एक फिगर लिया है, रैंडम फिगर एक लिया है। ओके, सब लोग ड्रॉ करो अपना अपना कॉपी में, मुझे दिखना चाहिए। टीच मिनट में सबका अटेंडेंस परसेंटेज वाइज जाएगा, कितना देरी तुम लोग क्लास किया है। फुल क्लास करने से 100%, 90% करने से 90%, 1% करने से 1%, सब आ जाता है। तो कोई भी धोखाबाजी नहीं करना है, सबको क्लास करना है ढंग से। अभी तक मैंने यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी नहीं किया है, करूँगा शायद इन फ्यूचर, अगर जरूरत पड़ा तो मैं करूँगा। सबको अपना अपना वीडियो मोड ऑन रखना है। अभी भी एक दो स्टूडेंट वीडियो मोड ऑन नहीं रखा है, सबको मैं फोन लगाऊंगा, बहुत खराब से मैं बोलूंगा, अभी पेरेंट्स को मैं बताऊंगा। ओके, आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन द फिगर। किसी का बाकी है? देवोश्री, तुम्हारा हाथ तो हिल नहीं रहा है, हो गया ड्राइंग? सर हो गया ड्राइंग। Oh, very good, very good. Okay, to find out perimeter, okay, to find out area by the application of Heron's formula, we will do by the application of Heron's formula. Okay, तो Heron's formula यूज करने से पहले मुझे क्या निकालना होगा? S निकालना होगा, है कि नहीं? तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। Now, Obro will tell me what I will do to find out semi perimeter of the triangle. Tell me, Obro. So first a plus b plus c by 2. A plus b plus c by 2. तो ऐसे बताओ, ए के जगह पे मैं क्या लूँ, बी के जगह पे मैं क्या लूँ, सी के जगह पे मैं क्या लूँ? So 32 a के जगह में। अच्छा चलो, 32 प्लस 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2।
ओके, तो इस जगह पे ये वाला स्टेप लिखने से भी लिख सकता है, नहीं लिखने से भी चलेगा। हाँ, डायरेक्ट s इज इक्वल टू दिस बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस, s इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2। अच्छा कमरान मुझे बोलो तो स्क्रीन में एक पेंसिल मेरे कंप्यूटर में तो शो हो रहा है, स्क्रीन में एक पेंसिल, तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या वो पेंसिल? कमरान माइक ऑन करना नहीं आता है कमरान को? सुकन्या मेरी स्क्रीन में एक पेंसिल आ रहा है, तुम लोग के स्क्रीन में भी वो पेंसिल आ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है पेंसिल? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, मतलब मुझे ही खाली दिखाई दे रहा है ये वाला पेंसिल। ओके सर मुझे मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। सर मेरे को दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो 32 प्लस 24 प्लस 40 बाय 2 इसका वैल्यू निकालो, कितना होगा? बोलो कौन बोलेगा मुझे? ट्रिनामोल प्लस करो, ट्रिनामोल 32 प्लस 24 प्लस 40 करो, कितना होगा? ट्रिनामोल जल्दी फटाफट। कितना हुआ ट्रिनामोल बोलो मुझे प्लस करके। 96 वेरी गुड। 96 बाय 2, 96 बाय 2 डिवाइड करना है अभी। मेघना सोनोवाल अभी बोलो, डिवाइड करके बोलो मुझे कितना हुआ। सिर खुजाना बंद करो। हाँ 96 बाय 2 कितना होगा? डिवाइड करो फटाफट, डिवाइड। 48 वेरी गुड, 48 वेरी गुड वेरी गुड, 48 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे सब दिखता है मुझे, बहुत साल में बोलूंगा, बहुत साल बाद, क्योंकि इतना दिन से मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, किसी का चेहरा नहीं दिखता था, तो खाना ही खा रहा है ना पढ़ाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई कैन सी एवरीवन राइटिंग और सिटिंग, या फिर कोई सिर खुजा रहा है, मुझे सब पता चल रहा है। ओके, सो s इज इक्वल टू 42। आई होप यू हैव रिटन ना टिल दिस मच। लिख लिया ना? मैं रब कर सकता हूँ? हाँ मैं सर। रब करूँ? ओके, Yes, मैं sir. रब कर Yes, sir. मैं रब कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। सिर्फ 48 में लिख के रखूंगा इसकी जगह पे, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन है, जगह नहीं होगा, दूसरा पेज में जाने से तुमको प्रॉब्लम भी होगा। तो s इज इक्वल टू मेरा आया है 48। चलो मैं 48 लिख देता हूँ। 48 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हेडन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया निकालना है ना अभी। एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर s, देन s माइनस a, देन s माइनस b, देन s माइनस c, यही है। तो s कितना है? s है तुम्हारा 48। अच्छा, अभी मुझे हेल्प करेगा मानव शाह। बोलो उसके बाद में क्या लिखूं? मानव शाह, मानव, आवाज नहीं आ रहा, माइक ऑन करो मानव, तुमको मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। आता है ना माइक ऑन करना? मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर होना चाहिए। नेटवर्क का तुम्हारा वॉइस मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा, मानव जानबूझ के आंसर नहीं दे रहा है, तो इतना देर में वेट नहीं कर सकता हूँ। प्रज्ञान, प्रज्ञान टेल मी व्हाट आई विल पुट हियर। हाँ बोल, क्या होगा? 48 मेघना थोड़ी बोली है। 48 माइनस हाँ कितना? नहीं प्रज्ञान, सर 32 होगा। हाँ 32 होगा पहले, क्योंकि मैंने पहले एक की जगह पे 32 लिया था। देन 48 माइनस कितना होगा? 24। 24। गुड। देन 48 माइनस 40। 40। वेरी गुड, इतना तक तुम लोग को समझ में आ गया है। चलो
देन रूट ओवर 48 विल रिमेन 48, ब्रैकेट है ना, मतलब इनटू है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, इसका मतलब इनटू होगा ना इधर। अच्छा, अभी मुझे कैलकुलेशन करके बताएगा लक्ष्य हीरा 48 माइनस 32 कितना होगा कुआ, 48 माइनस 32 कितना होगा बोलो लक्ष्य हीरा। हाँ ये माइनस कर दी है अभी, माइक ऑन करी कुआ मुझे सुनाई नहीं दिया। 48 माइनस 16, ओके 16, चलो देन 48 माइनस 24 विल बी डन बाय किसको बोलो, आस्था कुमारी, कितना होगा 48 माइनस 24? 24, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला मुझे बताएगा ऋषि पॉल, 48 माइनस 48, ओके ओके गुड। अभी क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखो। 48 का मतलब क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4, 48 का मतलब 8 इंटू 4 में लिख सकता हूँ। देन 16 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, देन 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। सर हाँ सर 48 8 Yes. इंटू 6 होगा। हाँ गुड, किसने बोला है? सर जोगियर। हाँ, कितना क्लास में ध्यान दे रहा है इसी से पता चलता है, आंसर निकलता ही नहीं। हाँ 6 होगा इधर, 8 इंटू 6, देन 4 इंटू 4, देन 4 इंटू 6, देन 8 का मैं 8 ही रख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कितना कितना नंबर है, 8 कितना बार है, 2 बार है, 2 करके मैं पेयर करूंगा। हाँ 6 कितना बार है, 2 बार है, एंड 4 कितना बार है, 3 बार है। चलो मैं 2 बार वाला ले लेता हूँ, 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो स्टेप के लिए जगह नहीं होगा, मैं यहाँ पे इक्वल टू 8 8 एक साथ में लिख लेता हूँ, देन 6 6 एक साथ में लिख लेता हूँ, देन 4 4 एक साथ में लिख लेता हूँ। क्या बाकी रह गया मुझे बोलो तो एक बार, व्हाट इज लेफ्ट? 4 4 देखो तुम, 4 में अगर लिखता हूँ तो वो पेयर नहीं है, उसके साथ और एक 4 नहीं है, तो मैं इसको पेयर बनाने के लिए मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ है कि नहीं? अच्छा अभी 8 इंटू 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, 6 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, 4 इंटू 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, है कि नहीं? ना मैम ने लिंक दे दिया। ज्वाइन करने का आ गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है, ये खत्म हो जाएगा हम लोग का। देखो माइक किसी का ऑन है, ऑफ करो। रूट ओवर का मतलब होता है टू डी पावर हाफ, रूट ओवर का मतलब होता है टू डी पावर हाफ, मतलब अगर जिसका पावर 2 है वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। मैं एक सिंपल क्वेश्चन देख के समझाता हूँ इधर देखो, ये ऐसे दिखाता हूँ। हाँ 8 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 8 स्क्वायर टू दी पावर हाफ, देखो हाँ ध्यान से, इज इक्वल टू 8 इंटू सॉरी 2 इंटू 1/2 होगा, तो 2 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 8 टू दी पावर 1 या फिर 8, ठीक है। ये तुम लोग को मैं जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखो रूट ओवर 8 स्क्वायर का मतलब होगा 8 होगा, सुमेधा होगा, 8 स्क्वायर का मतलब 8 होगा, रूट ओवर 8 स्क्वायर का मतलब 8 होगा। देवश्री मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 6 स्क्वायर का क्या हो जाए?
देवोशी, रूट ओवर 8 स्क्वायर का मैंने 8 लिखा है, तो 6 स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा? Sir, 6. गुड। 4 स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा? देवोश्री। Sir, 4. देन 2 स्क्वायर का मैं कितना लिखूंगा? Sir, 2. ओके, तो सबको मल्टीप्लाई करो। कौन फटाफट मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताता है? फटाफट। Sir, 384. Sir, 384. 384. Yes, 384 is the correct answer. 384 ये क्या है? 384 क्या है मुझे पहले बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन Sir, है area. क्या? Yes, 384 is area of this particular triangle. ट्रायंगल ही चला गया तुम। हाँ, 384 is area of the triangle. 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सबको? सर। किसी का कुछ डाउट है? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। नहीं, तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा, मेरा नेटवर्क अभी तक फिलहाल ठीक ही है, पॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो I hope you have understood till this much. We will continue with this chapter in our next class. Attendance automatically generate हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नेक्स्ट टाइम से मुझे कुछ स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, ये लोग का कैमरा ऑफ है। शुभदीप दास, देन शुभम कौर, विवेक राय, हेलो, वेयर आर यू विवेक? विवेक, ये गूगल मीट नहीं है कि तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, ये गूगल मीट नहीं है कि तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसमें सब ऑन होता है। कृष्णा दत्ता, तुम्हारा कैमरा ऑफ है। देन प्रोनामी, कैमरा ऑफ है। अर्पिता मुजुमदार, हाँ, ओके। So with this we will end our today's class. I hope you have understood. किसी का अगर कुछ डाउट हो तो ये कैमरा, ये फुल क्लास ऑन रिकॉर्डेड है, तुम लोग जाके देख सकता है, 30 मिनट में ही रहेगा। और एक बात, नेक्स्ट टाइम से मैं मैसेज नहीं डालूंगा कि क्लास में आओ ज्वाइन करो। ऑलरेडी तुम लोग का टाइम टेबल मैंने 30 मिनट में अपडेट किया हुआ है, जिस टाइम में रहेगा उस टाइम में तुम लोग आ जाना। बाय चांस अगर मुझे थोड़ा लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज ही जैसे कि मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि एकदम टाइम में आऊँ, कंप्यूटर वगैरह पहले से ही सेटअप करके रख दूँ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास सो नाइसली। सो विद दिस वी विल एंड आवर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, जाओ तुम लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करो जाके।